جن ممالک نے ترقی کی انہوں نے ہمیشہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی۔ الیکٹریکل وہیکل کی حوصلہ افزائی کلین اینڈ گرین پاکستان پالیسی کا حصہ ہے۔ الیکٹرک وہیکل پالیسی کے تحت روزگار فراہم ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا پاکستان کی پہلی ماحول دوست الیکٹرک بائک کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ آزاد کشمیر کی انتخابی مہم میں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں کامیابی حاصل کرے گی اور حکومت بنائے گی۔ این سی او سی نے افغانستان میں کورونا کی صورتحال کے پیش نظر بارڈر بند کیا تھا۔ تورخم بارڈر پر پھنسے پاکستانیوں کے لیے جلد ہے عمل طے کریں گے۔ وزارت داخلہ نے تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں مزید 1683 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص۔ 24 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 24 گھنٹوں میں 50,531 ٹیسٹ کیے گئے۔ این سی او سی کا کیسز میں اضافے پر اظہار تشویش۔ صوبوں کو 130 پر عمل درآمد سمیت ویکسینیشن تیز کرنے کی ہدایت۔ عید الاضحیٰ کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری۔ مقبوضہ کشمیر میں برہان مظفربانی اور ان کے ساتھیوں کی یوم شہادت پر مکمل ہڑتال۔ دن کو یوم مزاحمت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں کا شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر برائے امور کشمیر علی امین خان کنڈاپور کا برہان وانی تمام کشمیری شہداء کو زبردست خراج عقیدت۔ برہان وانی کی شہادت کے موقع پر بھی بھارت کا ظلم نہ رک سکا، مزید 5 کشمیری شہید کر دیے۔ افغانستان مسئلے کا پائیدار حل پاکستان امریکہ تعلقات کے مستقبل کے تعین میں کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ افغانوں کی قیادت میں افغانوں پر مشتمل عمل ہی افغان مسئلے کا بہترین حل ہے۔ ہمیں مل کر افغانستان مسئلے کے پائیدار حل کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر اسد مجید خان کا واشنگٹن میں انسٹیٹیوٹ آف پیس میں پاکستان امریکہ تعلقات کے اگلے مرحلے کے حوالے سے سیمینار سے خطاب۔ افغانستان میں پاکستان اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہیں۔ حال ہی میں پاکستان کئی معاملات میں مدد کر رہا۔ دونوں ملک مل کر افغانستان میں امن کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تمام ہمسائے ممالک کو افغانستان میں جامع جنگ بندی، پائیدار امن اور سیاسی استحکام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ۔ افغانستان میں امن کے لیے کوششیں تیز۔ تہران میں افغان حکومت اور طالبان کے مابین مذاکرات۔ افغان وفد کی نمائندگی سابق وزیر خارجہ یونس قانونی جبکہ طالبان کی نمائندگی شیر محمد عباس نے کی۔ افغانستان میں جاری کشیدگی کا حل انٹرا افغان مذاکرات میں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ افغان فورسز اور طالبان میں جاری لڑائی میں شرکت۔ ادھر بھارت میں کورونا کی صورتحال بدستور سنگین۔ 174 اضلاع میں ڈیلٹا، ڈیلٹا پلس اور دیگر اقسام کے وائرس کی تصدیق۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 45,000 سے زائد نئے کیسز، 930 ہلاکتیں۔ انسانی خدمت میں کمال، دنیا کے لیے ایک مثال۔ فخر انسانیت اور پاکستان کے عالمی شہرت یافتہ سماجی کارکن عبدالستار ایدھی کو ہم سے بچھڑے 5 برس بیت گئے۔ دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی آج بھی ہر پاکستانی کے دل میں زندہ ہیں۔ خدمت خلق کے شعبے میں گراں قدر خدمات پر انہیں کئی قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ پاکستان انگلینڈ کرکٹ سیریز 3 ایک روزہ میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 5 بجے شروع ہوگا اور پی ٹی وی اسپورٹس پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ دونوں ہی ٹیمیں سیریز کا آغاز فتح کے ساتھ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔
विंबलडन ओपन, स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर का 9वें विंबलडन टाइटल के लिए सफर क्वार्टर फाइनल्स में तमाम। पोलैंड के हर्बर्ट हर्किच के हाथों अब तक शिकस्त का सामना। दिफाई चैंपियन आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच सेमीफाइनल में पहुंच गए। इटली के मेट्रो ब्रिटनी और कनाडा के डेनिस शेपोवालोव को भी लास्ट फोर में रसाई। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। विंबलडन ओपन खवातीन सिंगल सेमीफाइनल आज खेले जा रहे हैं। पहले सेमीफाइनल में टॉप सीड ऑस्ट्रेलिया की एस्ते बार्टी और जर्मनी की एंजेलिक कर्बर मध्य मुकाबले थी। दूसरा सेमीफाइनल जमहूरिया चेक की कैरोलिना प्लिस्कोवा और बेलारूस की अरीना सबलिंका के दरमियान खेला जाएगा। यूरो फुटबॉल कप 2020 दूसरा सेमीफाइनल डेनमार्क को इंग्लैंड के खिलाफ ओन गोल महंगा पड़ गया। इंग्लैंड ने डेनमार्क को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर 55 साल बाद किसी बड़े इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल में इंग्लिश टीम का मुकाबला इटली से 12 जुलाई को होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अयाज असलम। मैं हूं हुमा मलिक और स्पोर्ट्स न्यूज के लिए मैं आपके साथ हूं मोहम्मद अनीस। शेषों के आपने जानी इन खबरों की तफसील जानिएगा इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बेटा बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द भेज देना। अब्बा इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? पूरा बकरा? एमसीबी बल्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। एमसीबी बल्क रफ्तार, फौरन से फौरी। एमसीबी बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि खुद इंहिसारी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान तरक्की के मनाजिर तय कर रहा है। इस्लामाबाद में इलेक्ट्रिक बाइक के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी में मुल्क को कर्जों और भीख पर चलाया गया और मुल्क में दौलत की पैदावार पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम मुल्क की सनत को तरक्की दे रहे हैं जिससे मईशत आगे बढ़ रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है और तिजारती खसारे में कमी वाक़ हुई है। अब हमारी इकोनॉमी माशाअल्लाह तेजी से ऊपर जा रही है। आगे हमें क्या मसला आएगा? हमें मसला तब आएगा कि अगर हमारे मुल्क में डॉलर की कमी होनी शुरू हो गई, क्योंकि ज्यादा डॉलर बाहर जाने शुरू हो गए, करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, तो ये हमारे रोकेगा हमारी ग्रोथ को। फिर हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा अभी से हम वो सब कदम उठा रहे हैं कि हमारे मुल्क में डॉलर की कमी ना हो, ताकि मुल्क में हमारी ग्रोथ रेट इफेक्ट ना हो। और उसके लिए हर वो चीज़ करनी है हमने, जो चीज़ हम पाकिस्तान में बना सकते हैं वो करें। जो रॉ मटेरियल पाकिस्तान में अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करें और सारी इन्वेस्टमेंट इस तरह करें कि पाकिस्तान से हम चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकें। वज़ीर सनअत और पैदावार खुसरो बख्तियार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में खाम माल भी दरामद किया जाता रहा जिससे मईशत आगे न बढ़ सकी। सनअती पैदावार में इजाफा हुआ है जिससे तरक्की की शरह 4% तक पहुंची है। इसे 6% तक बढ़ाएंगे और पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ में शामिल होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में कामयाबी हासिल करेगी और हुकूमत बनाएगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि NCOC की हिदायत पर अफगानिस्तान में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र बॉर्डर को बंद किया गया था, तो हम बॉर्डर पर फंसे पाकिस्तानियों के लिए लाहे अमल तय करेंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान में दाखिल होने वाले 40 से 50 हज़ार अफराद का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। वज़ारत दाखिला ने तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला किया है। हम कश्मीर की इलेक्शन कैंपेन में दल्ले की तहरीक इंसाफ की कैंपेन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर में तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाएगी। चमन को पहली तारीख से इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे। तोरखम बॉर्डर पे जो सूरत हाल पैदा हुई है कि NCOC ने जिनके पास वैक्सीनेशन जिन्होंने की हुई है उनके लिए वो खोल रहे हैं। पाकिस्तानी जो जाना चाहते थे मिडल ईस्ट और सऊदी अरब, वहाँ की फ्लाइट लेने गए थे 4 से 5 हज़ार लोग, वो तोरखम बॉर्डर पे हैं। पहले हमने बंद किया था, फिर NCOC ने ये हमें मशवरा दिया कि पाकिस्तानियों के लिए इसको खोल दिया जाए। एलियन कार्ड के जरिए
गैर मुल्की शहरियों को बैंक अकाउंट खोलने और कारोबार शुरू करने और सिम हासिल करने और सफरी सहूलत की हम इजाज़त दे रहे हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है, वज़ीर-ए-आज़म कराची के अवाम को रिलीफ देने के लिए हम मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कराची के लोगों को टैंकर माफिया से निजात मिलेगी। इस्लामाबाद में कराची वाटर सप्लाई स्कीम K4 के हवाले से मुआहदे की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ममलकत इत्तलात ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची की बहाली के लिए मंसूबों का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म का फोकस आइंदा आम इंतखाबात की बजाय आइंदा आने वाली नस्लों पर है। उन्होंने कहा कि 2023 में K4 मंसूबे से 650 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। वापडा के पास सलाहियत है कि मंसूबे को बरवक्त मुकम्मल करे। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौर में डैमों की तामीर शुरू हुई है। आइंदा 10 साल में 13 मिलियन एकड़ फुट मजीद पानी जखीरा करने के लिए डैम मुकम्मल करेंगे। मजीद उनका कहना था कि साबिक हुकूमत ने महंगे फ्यूल पर मंसूबे लगाए। हुकूमत का फोकस आबी वसाइल और सस्ती बिजली पैदा करने पर है। फारूक हबीब ने कहा कि वापडा के बॉन्ड पर आलमी सतह पर एतमाद जाहिर किया गया है। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन का कहना था कि कराची के आवाम को पीने के साफ पानी की दस्तयाबी की कमी का सामना है। कराची को 1300 मिलियन गैलन पानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत पानी के मंसूबे K4 को जल्द मुकम्मल करना चाहती है। सदर ममलकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज तलब किया है। इजलास दोपहर 4:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सैयद ज़हूर अहमद आगा को बलूचिस्तान का नया गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सैयद ज़हूर अहमद आगा की तकर्री की मंजूरी दी है। सदर ममलकत ने गवर्नर बलूचिस्तान अमानुल्लाह खान यासीन सई का इस्तीफा मंजूर कर लिया। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान में बेरोजगारी और पसमानदगी के खात्मे के लिए अपनी तवानाइयां बुरे कर लाऊंगा। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के साथ खुश उसलूबी से चलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कई साल से नाराज बलूच रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। यकीन है कि वो इमरान खान पर एतमाद करके वापस आएंगे। इससे कबल बलूचिस्तान के गवर्नर नामजद होने के बाद सैयद ज़हूर आगा की रिहाइशगाह पर PTI के कारकुन बड़ी तादाद में जमा हो गए और उनको मुबारकबाद पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कतर के 2 रोज़ा दौरे में कतर के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ममलकत बराए दिफा डॉक्टर खालिद बिन मोहम्मद अतिया और कतरी अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल गनीम बिन शाहीन अल गनीम से मुलाकातें की। मुलाकातों में दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग समेत इलाकाई और जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान और कतर के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पायदार शिराकत में तब्दील हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने अफगान अमन अमल में कतर के किरदार को भी सराहा। मुलाकातों में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा गया और दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का अहद किया गया। आगाह करेंगे आपको कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल से। आपको बताएं कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। इस दौरान 50,531 अफराद के टेस्ट किए गए, जिसमें से 1,683 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कोरोना से मजीद 24 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 22,493 हो गई है। 1,980 अफराद कोरोना के बायस अब भी तशवीशनाक सूरत हाल का शिकार हैं। मुल्क में वैक्सीनेशन का अमल भी तेजी से जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,12,238 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मजमूई तौर पर 1,82,28,235 अफराद को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल से निपटने के लिए इक़दाम जारी हैं। MCOC ने फैसला किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाने वाले अफराद को कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की सूरत में 10 दिन करंटीना करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना से निपटने के लिए मौसर हिकमत अमली पर MCOC, एहसास टीम और स्टेट बैंक की काविशों को सराहा है। तफसील के लिए इमरान मनसब खान की रिपोर्ट।
वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में SOPs की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेते हुए तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद और वैक्सीनेशन के अमल को तेज करने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाने की हिदायत की। फोरम ने कोविड केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया और ईद उल अज़हा के सिलसिले में जारी की गई SOPs पर खुसूसी अमल दरामद के अहकाम दिए। इजलास में बताया गया कि अफगानिस्तान में कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नज़र मगरबी सरहद को 17 जून 2021 से बंद किया गया था। इस बंदिश के दौरान सिर्फ दोनों तरफ से फंसे पाकिस्तानी और अफगानी शहरियों के अलावा इंतहाई इमरजेंसी केसेस के मरीजों और तलबा को खुसूसी रियायत हासिल है। अफगानिस्तान में फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए चमन और तोरखम बॉर्डर्स पर खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। जिन अफराद को वैक्सीन नहीं लगी या सिर्फ एक खुराक दी गई है उनको बहर सूरत 10 दिन के लिए अपने मुतलका सूबे में क्वारंटीना में रखा जाएगा। इंतहाई इमरजेंसी मेडिकल केसेस और अफगानी तलबा के लिए पहले से जारी की गई हिदायत नाफिजुल अमल रहेंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना से निपटने की मौसर हिकमत अमली पर NCOC, एहसास टीम और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की काविशों को सराहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने कोरोना वबा के बाद माशी बहाली के हवाले से 50 मुल्कों का सर्वे किया और पाकिस्तान को कोरोना के दौरान मईशत पर काबू पाने वाले ममालिक में तीसरे नंबर पर करार दिया। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म का कहना था कि कोरोना वबा में मईशत पर काबू पाने वालों की फहरिस्त में हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे, भारत 50 मुल्कों की फहरिस्त में 48वें, चीन 19वें जबकि अमरीका 20वें नंबर पर है। इमरान मनसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। 25 जुलाई को होने वाले आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियों में तेजी आ गई है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद। आज़ाद कश्मीर के आइंदा आम इंतखाबात चंद ही दिन की दूरी पर हैं। मौसम भी गर्म है और सियासी दर्जा हरारत भी मुसलसल बढ़ रहा है। सियासी सरगर्मियां और गहमा गहमी बामे उरूज पर हैं। हर गुजरता दिन इंतखाबात में हिस्सा ले रहे उम्मीदवारों की बेचैनी में इजाफा कर रहा है। सियासी सरगर्मियां एहसाब शिकन मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। जुमला सियासी जमातें हैं वो अपना पूरा जोर लगा रही हैं, दूर दराज तक देहाती इलाकों तक लोग पहुंच रहे हैं। तो जिस तरह की गहमा गहमी देखने में आई है ये जमहूरियत का हुस्न है और ये मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना मंशूर अवाम के सामने पेश कर रही हैं। वो मुख्तलिफ जराए बरूए कार ला रही है ताकि अवाम को कायल किया जा सके। उम्मीदवारान रात गैर तक अपने इंतहाबी हलकों में रहते हैं और अवामी राय को अपने हक में करने के लिए तगोदो में मसरूफ हैं। घरों, दफातर, होटलों, निजी महफिलों और हर तरफ मौजूए गुफ्तगू आमदा इंतखाबात ही हैं। शहरों के साथ साथ अब देहात और कस्बों में भी सियासी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जहलम वैली रोड, जिला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की मफाद और कौमी वक़ार को मुकद्दम रखते हुए अमरीका को अड्डे देने से इनकार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी अपना CV लेकर अमरीका रवाना हो रहे हैं। अपने बयान में वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान ने बेहतरीन अंदाज में कश्मीर का मुकदमा आलमी फोरम्स पर उजागर किया। कश्मीरी जानते हैं कि उनका हकीकी तर्जुमान कौन है। मुराद सईद का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर्ची लहराकर आज़ाद कश्मीर पहुंच गए हैं। हम कश्मीर को लाड़काना नहीं बनने देंगे। वज़ीर मवासलात ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की तरह आज़ाद कश्मीर में भी शिकस्त उनका मुकद्दर बनेगी। ये थामने का रोना रोएंगे क्योंकि उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। अपने लहू से कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंकने वाले नौजवान रहनुमा बुरहान मुजफ्फर वानी का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद होने वाले बुरहान मुजफ्फर वानी और उनके साथियों के 5वें यौम शहादत पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल है। आज बुरहान वानी के आबाई कस्बे तराल की तरफ मार्च किया जाएगा। हुर्रियत रहनुमा और तंजीमों ने नौजवान रहनुमा और उसके साथियों को शानदार खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि हफ्ता शुहदा बहादुर कश्मीरियों की तरफ से आज़ादी के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों की याद दहानी है। 13 जुलाई तक जारी रहने वाली तकरीबात में जान का नजराना देने वाले बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। KMS के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 2 नौजवान शहीद हो गए। कुपवाड़ा और राजौरी में भारतीय फौज ने इन नौजवानों को बर्बरियत का निशाना बनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और मीर वाइस उमर फारूक की सरबराही में कायम हुर्रियत फोरम ने इन मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार किया है, जिनके मुताबिक मोदी हुकूमत की हिमायत याफ्ता कुछ अनासर आज़ादी पसंद तंजीमों के दफ्तर पर झंडा लहराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस और हुर्रियत फोरम ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी पर जोर दिया है कि वे सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक मिशन मकबूजा इलाके में भेजें और मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के लिए इक़दाम करें। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने मुतालबा किया है कि भारतीय पुलिस मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ियों को हिरासत करना बंद करे और उन्हें आज़ादाना तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम देने दे। वफाकी वज़ीर बराए उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने कहा है कि बुरहान वानी शहीद हक़ खुद इरादत की जद्दोजहद के हवाले से कश्मीरी नौजवानों के लिए एक मशअल राह हैं।
पाकिस्तान कश्मीरियों के हुकूक की आवाज़ पूरी दुनिया में बुलंद करेगा। वफाकी वज़ीर अली अमीन खान गंडापुर ने बुरहान वानी और तमाम कश्मीरी शुहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि बुरहान वानी जैसे लाखों कश्मीरी नौजवान हक़ खुदरादियत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी है। भारतीय फ़ौज कश्मीरी नौजवानों को नाम नहाद सर्च ऑपरेशन में शहीद कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज आलमी बरादरी की मजम्मत के बावजूद कश्मीरी अवाम के खिलाफ पैलेट गन का भी इस्तेमाल कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही मुमकिन है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने के भारतीय हथकंडों का नोटिस ले। आज़ादी पसंद कश्मीरी कमांडर बुरहान वानी के यौम शहादत के मौके पर मुजफ्फराबाद में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बुरहान वानी शहीद की तस्वीर वाले बैनर्स और कत्बे उठा रखे थे। कश्मीरी मुजाहिरीन आज़ादी कश्मीर और बुरहान वानी के हक में फलक शिकाफ नारे लगाते रहे। यौम मज़ाहमत के शुरका ने मरकजी शाहरा पर मार्च किया और भारत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की। रैली के इज्तिमा से खिताब करते हुए दौरान मुकर्रिरीन ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीरी अवाम को आज़ादी की जदोजहद से दस्तबरदार नहीं कर सकती। मुकर्रिरीन ने कहा कि आज पूरी कौम बुरहान मुज़फ्फर वानी और हजारों शुहदा के मुक़द्दस लहू से अहद वफा करने का दिन है। मुकर्रिरीन ने मज़ीद कहा कि शुहदाए जम्मू कश्मीर के मुक़द्दस लहू की हिफाजत और मंजिल के हुसूल तक जदोजहद जारी रहेगी। बुरहान वानी शहीद की अजीम कुर्बानी ने भारत मुखालिफ आज़ादी की तहरीक को पूरी दुनिया में मुतारिफ करवाया। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में पाकिस्तान आज़रबाईजान इक़्तिसादी ताउन चैम्बर का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना है। इस चैम्बर का मुस्तकिल दफ्तर बाकू में होगा और इसके अरकान में दोनों मुल्कों के ताजिर शामिल होंगे। इस फोरम के क़याम से पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी में इजाफा होगा। इस तासुर को तक़वियत मिलेगी कि दोनों मुल्क तिजारत और सरमायाकारी के लिए बेहतर और महफूज हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर असद मजीद खान कहते हैं कि अफगानिस्तान मसले का पायदार हल पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के मुस्तकबिल के तयन में कलीदी अहमियत रखता है। हमें मिलकर अफगानिस्तान के मसले के पायदार हल के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। वाशिंगटन में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के अगले मरहले के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए असद मजीद खान ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम का ख़्वाह है। अफगानों की क़यादत में अफगानों पर मुश्तमिल अमन अमल ही अफगान मसले के बेहतरीन हल का सामन है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के वसीतर मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान का महल वक़ूअ और मईशत का हजम अमरीकी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी के बेहतरीन मौक़े फराहम करता है। असद मजीद ने कहा कि पाकिस्तान 220 मिलियन सारिफीन पर मुश्तमिल दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है। मौजूदा हुकूमत ने बैरूनी सरमाकारों के लिए पुरकशिश और बेहतर पॉलिसी बनाई है। उन्होंने खत्ते में अमन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने खत्ते में अमन के लिए भरपूर कोशिशें की हैं। पाकिस्तान की अमन की कोशिशों को भारत ने संजीदा नहीं लिया। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक ही हल होना चाहिए। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान और अमरीका के मफादात मुश्तरक हैं। दोनों मुल्क अफगानिस्तान में अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। वाशिंगटन में हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग में नेड प्राइस ने कहा कि हाल ही में पाकिस्तान कई मामलात में मददगार रहा है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए इलाकाई इत्तफ़ाक़ राय के हवाले से भी बात की। उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम हमसाया ममालिक को अफगानिस्तान में जामे जंगबंदी और पायदार अमन और सियासी इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करना होगा। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमरीकी सदर जो बाइडेन अफगानिस्तान के बारे में अपनी पॉलिसी से मुतालिक आज अहम खिताब करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने बताया कि फौजों में कमी और अफगान हुकूमत की मदद अमरीकी सदर के खिताब का अहम हिस्सा होगा। अफगान वज़ारत दिफा ने कहा है कि सरकारी फौज ने सूबा बादगीस के मरकजी शहर कला नौ से तालिबान को पीछे धकेल दिया है। इस कार्रवाई में तालिबान को भारी जानी नुकसान हुआ है। गुज़श्ता रोज तालिबान ने कला नौ शहर पर कब्जा कर लिया था। बाज़ इत्तलात के मुताबिक तालिबान अब भी कला नौ के बाज़ इलाकों में मौजूद है। दूसरी जानिब तालिबान ने दावा किया है कि उन्होंने सूबा बादगीस के जिला शहर सफा पर भी कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशें तेज। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में तालिबान और अफगान सियासी रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए। दोनों धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात का एहतमाम ईरान ने किया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर गौर किया गया। इस मौके पर जवाद ज़रीफ ने कहा कि अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तक़बिल के लिए सख्त फैसले करने होंगे। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में जारी कशीदगी का हल इंटर अफगान मुज़ाकरात और सियासी तस्लीम में बनना है।
जवाब ज़रीफ ने कहा कि ईरान अफगानिस्तान की सियासी जमातों और रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए ताकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जा सके। अफगान वफ्द की क़यादत साबिक़ वज़ीर ख़ारजा यूनुस कानूनी और तालिबान के वफ्द की क़यादत सियासी उमूर के नायब सरबराह शेर मोहम्मद अब्बास ने की। भारतीय हुक्काम की नाअहली के बायस फैलने वाले कोरोना की किस्म डेल्टा ने दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 18 करोड़ 56 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि 40 लाख 13 हजार हलाक हो चुके हैं। इंडोनेशिया को कोरोना की अब तक की शदीद लहर का सामना है। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडोनेशिया में 34,368 केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 1,000 से ज्यादा लकमातिल बन चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर हुकूमत ने मुल्क भर में सख्त पाबंदियां नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया में सबसे ज्यादा केस ब्राजील में रिकॉर्ड किए गए हैं, जहां 62,000 से ज्यादा मस्बत केसेस की तस्दीक हुई है, जबकि 1,787 अफराद लकमातिल बने। भारतीय हुकूमत की बेहिसी और अस्पतालों में अदम सहूलतों के बायस भारत में एक बार फिर कोरोना वबा की शदीद लहर का खतरा बढ़ गया है। भारत की वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोविड-19, डेल्टा और इसके दीगर मुख्तलिफ अक़साम में तेजी से इजाफा हो रहा है। भारत में कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 45,000 से ज्यादा मुस्बत केसेस सामने आए हैं, जबकि 930 अमवात के बाद हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक डेल्टा किस्म के ज्यादा केसेस महाराष्ट्र, नई दिल्ली, पंजाब, तेलंगाना, मगरबी बंगाल और गुजरात में रिपोर्ट हुए हैं। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपनी हुकूमत को जिंदा रखने की एक और कोशिश। नरेंद्र मोदी ने वज़ीर सेहत समेत काबीना के 12 अरकान को बर्खास्त कर दिया है। मोदी हुकूमत ने कोरोना वायरस के हवाले से ये कदम उठाया है। इसी हवाले से आपको मजीद बताएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए बताएं कि हरमैन शरीफैन इंतजामिया के मुताबिक इस साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 जबानों में नश्र किया जाएगा। मस्जिद उल हराम के सहनों के सैनिटाइजिंग के लिए 5,000 कारकुनान की खदमात हासिल कर ली गई हैं। मताफ में हरम इंतजामिया के कारकुनान सफाई और सैनिटाइजिंग का अमला अपने फराज अंजाम देगा। ताहम हरम शरीफ में 5 वक्त की अजानें और नमाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। इस साल हज पर तवाफ के लिए 25 ट्रैक तैयार किए गए हैं। हज से कबल खाना काबा की छत की खुदकार मशीनों से सफाई की जाएगी। हज की तैयारियों के लिए मताफ में दाखिला आरजी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। आलमी वबा कोरोना के बायस इस साल भी सिर्फ 60,000 मकामी और मुकीम गैर मुल्कियों को हज की इजाजत दी गई है। आजमीन में 150 ममालिक के अकामा होल्डर्स, मुकम्मियन और दीगर सऊदी शहरी शामिल हैं। सऊदी हज मुंतजमीन के मुताबिक दौरान हज वैक्सीनेशन और समाजी फासले की खासतौर पर मॉनिटरिंग का इंतजाम किया गया है। हेटी के सदर के कत्ल के बाद पुलिस ने 4 मुबैना कातिलों को ऑपरेशन के दौरान हलाक कर दिया, जबकि 2 को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुखबिर बनाए गए 3 अहलकारों को भी कातिलों से बाजियाब करा लिया है। हेटी के सदर जोरियल मोइस हमलावरों की फायरिंग से हलाक हो गए थे। हमलावरों ने रात गए उनकी निजी रहायशगाह को निशाना बनाया था। हमले में उनकी अहलिया भी जख्मी हुई, जिन्हें तबी इमदाद के लिए फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के बाद उबूरी वज़ीर आज़म क्लॉड जोसेफ ने रियासत की जिम्मेदारियां संभालनी हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि रियासत के तसल्सुल और कौम की हिफाजत के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी रहनुमाओं ने हेटी के सदर के कत्ल की शदीद मज़म्मत की है। दुबई के बंदरगाह पर बहरी जहाज के एक कंटेनर में धमाके से करीबी इमारतें लरस उठी और घरों के शीशे टूट गए। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ये धमाका मशरिक़ वस्ता के सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट मरकज दुबई के जेर आला पोर्ट पर लंगर अंदाज कंटेनर जहाज में हुआ, जिससे अचानक आग भड़क उठी। सिविल डिफेंस की टीम ने आग पर काबू पा लिया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। उधर अमरीकी रियासत फ्लोरिडा में जमीन बोस होने वाली इमारत से मजीद 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। इमारत 2 हफ्ते कबल जमीन बोस हुई थी, जिसमें 100 के करीब अफराद दब गए थे। अब तक चैंपियन टावर से 54 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। हुकाम का कहना है कि अभी तक 100 अफराद लापता हैं, जिनके जिंदा बचने की उम्मीद बाकी नहीं। फ्लोरिडा का हुकाम ने तलाश और रेस्क्यू का काम खत्म होते ही बहाली का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इंसानियत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ करने वाले मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईथी को हमसे बिछड़े 5 वर्ष बीत गए। दहाइयों तक इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत करने वाले ईथी आज भी हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। मखलूक खुदा की दादरसी और खिदमत की रोशन मिसाल अब्दुल सत्तार ईथी की जिंदगी और खिदमत के हवाले से देखेंगे। कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की रिपोर्ट।
वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में बिजली की फराहमी रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा बिजली की तलब और फराहमी 24,284 मेगावाट रही। तलब और पैदावार में इजाफे के साथ तफसीली सलाहियत भी बढ़ी है। हमाद अजहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ हुकूमत से कबल जुलाई 2018 में 20,811 मेगावाट बिजली तरसील की गई थी। तरबेला डैम से सस्ती बिजली की पैदावार सिर्फ 25% है। इसके बावजूद बिजली की पैदावार का रिकॉर्ड कायम किया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर सिद्दीक साजिद, नायब सदर अहमद नवाज खान, सेक्रेटरी जनरल आसिफ बशीर चौधरी समेत दीगर नौमुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ओहदेदारान का इंतखाब सहाफ़ी बरादरी के उन पर एतमाद का मज़हर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इज़हार राय के बुनियादी जमहूरी और आईनी हक पर कामिल यकीन रखती है। आज़ाद, फाल और मुतहरिक मीडिया जमहूरियत की मजबूती और जमहूरी कदरों के फरोग के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल का हल, उनकी फलाह बहबूद, सलामती और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी तरजीहात में शामिल है। उन्होंने उम्मीद का इज़हार किया कि PRA के नौमुंतखब ओहदेदारान सहाफ़ी बरादरी की खिदमत में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। ख़वातीन की इंतख़ाबी अमल में शमूलियत के लिए नादरा की खुसूसी मुहिम, शनाख्ती कार्ड और वोटर्स रजिस्ट्रेशन मुहिम के चौथे मरहले का आगाज कर दिया गया। तफसील बताएंगी सदर अफजल। ये भी नहीं आ रही, पता लगे। ख़वातीन पर मुश्तमिल है, मगर शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से उनकी बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने में सबसे बड़ी रुकावट है। इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने नादरा के ताउन से मुल्क भर में वोटर्स रजिस्ट्रेशन मुहिम शुरू की है। मुहिम के चौथे मरहले के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में ख़वातीन समेत तमाम तबकों की शमूलियत को निहायत अहमियत देता है। Women's voter registration and turnout has been lower than men. ECP has taken several legal and institutional measures to address these issues. It's first time that we have 1,42,000 more women registered than men. चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वोटर्स रजिस्ट्रेशन मुहिम के दौरान ऐसी खवातीन जिनके कार्ड नहीं थे उन्हें शनाख्ती कार्ड भी दिए। यहाँ से सफर का आगाज होता है कि हमने अपनी वॉइसेस डेमोक्रेसी में आने वाले तमाम इलेक्शन में किस तरह इस्तेमाल करनी है। वो खवातीन जो 18 साल या उससे ज़्यादा एज की हो गई हैं, उनके ID कार्ड अभी तक नहीं बने, हमने उनको आइडेंटिफाई करना है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने इस मौके पर इदारे की तरफ से की जाने वाली काविशों के हवाले से ब्रीफिंग दी, जिसके बाद तकरीब के शुरका ने नादरा मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन का भी दौरा किया। खवातीन के बतौर वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों और मीडिया को अपना किरदार अदा करना होगा। सदर अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान के दूर दराज और पसमानदा इलाकों की तरक्की और आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी सूबाई हुकूमत का अज़्म है। नए माली साल के बजट में देही इलाकों के लिए तरक्याती फंड्स को माजी से कई गुना बढ़ा दिया गया है। कोयटा से बकार अहमद की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के नए माली साल के बजट में लोकल गवर्नमेंट और देही तरक्की के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 22 अरब रुपए रखे गए हैं। माली साल 2021-22 के बजट में लोकल काउंसिल्स की मजमूई ग्रांट को भी बढ़ाकर 16 अरब रुपए कर दिया गया है। तरक्याती बजट को भी गुज़िश्ता माली साल से 2 गुना बढ़ाकर 10 अरब रुपए तक पहुँचा दिया गया है। इस साल जो हमें PSDP में जो मिले, जो हमारा शेयर है लोकल गवर्नमेंट का, वो 140 स्कीमें है हमारे। इन स्कीमों को 3 अरब रुपए से मुकम्मल किया जाएगा। मुकामी और निचली सतह पर सर्विस डिलीवरी के लिए लोकल गवर्नमेंट का किरदार इंतहाई अहम है। बल्दियाती इदारों को पायदार और मुस्तहकम बनाना भी बलूचिस्तान हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। कोरोना वबा से बचाव के लिए पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर में खुसूसी तौर पर वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगाया गया। नौरीन आसिफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान टेलीविजन कराची सेंटर की जानिब से अपने मुलाजमीन की सहूलत के लिए कोरोना वैक्सीनेशन कैंप का एहतमाम किया गया, जहां सेंटर के मुलाजमीन ने बआसानी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवाई। PTV की मुश्तरका एक कोलैबोरेशन के साथ DHO ईस्ट के साथ मिलकर ये वैक्सीनेशन कैंप का एक अरेंजमेंट किया गया है PTV के अंदर ही,
ताकि जितने भी एम्प्लॉइज हैं उनको डोर स्टेप पे ये फैसिलिटीज मिल सकें। इंस्टीट्यूट की हिदायत तो हमारी हायर मैनेजमेंट ने बिलखुसूस हमें ये कहा कि इनके लिए कोई अपना कैंप कायम करें और डोर स्टेप पर कोई सहूलत दें। लोगों का अच्छा रुझान यहाँ पे नजर आ रहा है, वो काफी मोटिवेटेड हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। इदारे की जानिब से मुलाजमीन की सेहत को तरजीह देते हुए उन्हें ये सहूलत सेंटर के अंदर ही फराहम की गई। हमारा इदारा इतना अच्छा है कि वो हमारी सेहत का जो है पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं BTV का कि उन्होंने हमारे लिए ये सहूलत रखी। हमें कोड भी, हमें मैसेज भी आ गया था, हम इसमें थे कि कब चले जाएं, रात को चला जाएं, यहाँ चला जाएं, यहाँ बिल्कुल आराम सहूलत से ये सारा मैसर हो गया है। PTV की इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमेशा की तरह इस काम में भी पेश है। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद जफर इस वक्त मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के बारे में वायलेंस हम तो सिर्फ समझते हैं कि शायद ये जो है डोमेस्टिक वायलेंस है या ख्वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, शायद ये सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होती है। लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि यूरोप जैसे ममालिक में भी, अमेरिका जैसे ममालिक में भी अभी तक ख्वातीन जो हैं अपने हकूक़ की जंग जो है लड़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि जो हमारी बहनें और बेटियाँ ख्वातीन के इश्यूज को जिस तरीके से आगे लेके बढ़ रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। और इसमें एक बात पे मुझे फ़ख्र भी होता है, आपको मालूम है कि एज ए चांसलर एंड गवर्नर पंजाब मैं तमाम जो पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका चांसलर भी हूँ। और जब मैं कन्वोकेशन पे जाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि 80% मेडल जो हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल जो है हमारी बेटियाँ जीत रही होती हैं। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में हमारी बच्चियां जो हैं तालीम के मैदान में बच्चों से बहुत आगे। तो अब एक जो अवेयरनेस कैंपेन चली है और ख़ासकर तहरीक इंसाफ जो है वो वुमेन राइट्स की न सिर्फ बात करती है, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहती है। और मैं आपको जहां दुनिया में जजा और सजा का निज़ाम नहीं होता वहां इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। मैं मिसाल देता हूं बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में जो एसिड थ्रोइंग के वाक़यात हैं वो ख़त्म हो गए, इसलिए कि उन्होंने वहाँ जजा और सज़ा का निज़ाम दे दिया। उन्होंने कहा कि जब एक आदमी जुर्म करता है उसको उसकी सज़ा मिलती है तो दूसरे लोगों को तंबीह होती है। तो इसलिए हम वार्न करना चाहते हैं कि जो लोग भी ख्वातीन के साथ ज़्यादती करते हैं वो पंजाब की हुकूमत अंडर द लीडरशिप ऑफ उस्मान बुज़दार साहब और उसके साथ साथ ही हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस बात पे बहुत बिल्कुल क्लैरिटी है कि ख्वातीन के हकूक़ के लिए हमने फाइट भी करना है, हमने जंग भी करनी है, चाहे कितने भी ताकतवर तबकात हों हम पाकिस्तान की ख्वातीन के साथ खड़े होंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज यहाँ पर हमारे जो लोकल साउथ पंजाब के लीडर हैं, हमारे मिनिस्टर एनर्जी हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त एनर्जी के महकमे में काम कर रहे हैं, सारे BHU और यूनिवर्सिटियों में सोलर सिस्टम ये लेके आए हैं और माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि बड़े इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। फिर गर्देजी साहब एग्रीकल्चर हमारे मिनिस्टर हैं, वो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब से ये मिनिस्टर बने हैं तो जो हमारे किसानों के मसाइल थे, हमारे फार्मर्स के मसाइल थे, आप सबको मालूम है कि गन्ना जो है अगर 180 रुपए का रेट होता था तो जो हमारा जिम्मेदार है, काश्तकार है, उसको 140 रुपए भी नहीं मिलते थे, बल्कि 6-6 महीने 2-2 साल साल उनको पेमेंट नहीं होती। तो अब माशाल्लाह हमारे जिम्मेदार को चाहे वो गंदम है वो मौके पे उनको पैसे भी मिल रहे हैं, उनको उनकी जो है वक्त पे पेमेंट भी हो रही है, जिससे हमारा किसान जो है माशाल्लाह वो भी खुशहाल हो रहा है। उसके बाद हम जो सीड है इस पे भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम जो है कर रहे हैं। उसके साथ सबीन हमारी MP है, ये भी बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह ख्वातीन के हकूक़ के लिए और मुल्तान के इशूज़ के लिए हमेशा ये आवाज़ उठाती हैं। और जिनके हल्के में हैं उनका इसलिए मैं लास्ट में नाम ले रहा हूँ कि इनकी हम एम्पायर में काम कर रहे हैं, हमारे आमन सैंडियर साहब, ये भी मैं आपको बताऊँ कि ये लोगों के हकूक़ के लिए हमसे लड़ाई ले लेते हैं। ये हमेशा साउथ पंजाब की जंग लड़ने में सबसे आगे होते हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी इस वक्त मुल्तान की विजिट है, एक तो कनीज़ फातिमा चद्दड़ का बहुत प्रेशर था कि जी आपने आना है, इसकी आपने जो है ओपनिंग करनी है, और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के स्टाफ से मिलकर भी मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मेन मकसद तो ये था
लेकिन उसके साथ साथ ये एक मैंगो फेस्टिवल हो रहा है। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो मैंगोज हैं दुनिया के बेहतरीन मैंगो, इससे बेहतर मैंगो जो है आम जो है दुनिया में नहीं है, तो इसकी एक्सपोर्ट इंशाल्लाह बढ़ रही है। उसमें भी हमारे जो मिनिस्टर्स हजरात हैं इस पर पूरी तवज्जो जो है वो दे रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर हॉस्टल है, हमारे फवाद मुख्तार साहब हमारे बड़े दोस्त भी हैं और बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और बहुत बड़े साउथ पंजाब के बिजनेसमैन भी हैं, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों को रिस्पेक्ट देता हूं जो पैसा कमाते हैं और गरीब और मुस्तक लोगों पे खर्च भी करते हैं। तो जो पैसा बनाते हैं खर्च नहीं करते, मैं सच्ची बात है उनके बारे में कभी अच्छा लफ्ज मैं नहीं कहता, इसलिए कि मैं समझता हूं कि सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत जरूरी है। उसके अलावा सबसे अहम इशू आप सब जानते हैं कि पीने का साफ पानी लोगों तक पहुंचाना मेरा ये पैशन है, मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अगले 2 सालों में पंजाब के अक्सर लोगों को पीने का साफ पानी जो है प्रोवाइड कर दें। तो इंशाअल्लाह हम कल 11 फिल्ट्रेशन प्लांट जो मुल्तान में बंद पड़े थे उनका इफ्तिताह करेंगे। उसके अलावा और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है मुल्तान में और साउथ पंजाब में हम शुरू कर रहे हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन के हुकूक के लिए लड़ेंगे और उनको बाइख्तियार बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खवातीन के मसाइल के हल के लिए कोशां हैं। इस वक्त आपको ले चलेंगे बराह रास्त लाहौर, जहाँ मामले खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। पसमानदा इलाकों तक पहुँचाना और हर खासो आम के लिए बर वक्त बेहतर वो तमाम शहरी ज़रूरतें यकीनी बनाना जो किसी भी पाकिस्तान के शहरी का आईनी और कानूनी हक है। मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत की रोशनी में वज़ीर आला पंजाब जो है उन्होंने पसमानदा इलाकों को तरक्की याफ्ता इलाकों के हम पल्ला करने के लिए जो कमर कस ली है उसके मुस्बत असरात जो है वो आने शुरू हो गए हैं, जिसके तहत डीजी खान जैसे पसमानदा रीजन के अंदर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने जो वहाँ खुद जाके ना सिर्फ उनके सेहत के मसाइल बल्कि उनकी जिंदगी के साथ जुड़े जो दीगर ज़रूरियात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा 35% बजट जो है उस इलाके की तरक्की के लिए मुख्तस किया है। जो डेवलपमेंट बजट इस जनूबी पंजाब की तमीर और तरक्की के लिए एलोकेशन हुई है वो 66% जो है वो पिछले बजट की निस्बत ज़्यादा है और इस हवाले से ये एक ऐसा तारीखी कदम है जिसको जनूबी पंजाब के अवाम के सासे महरूमी दूर करने के लिए एक मरहम के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिन इश्यूज को हम हाईलाइट करेंगे उसमें ये क्रिटिसिज्म चल रहा है कि जनूबी पंजाब सूबा अनाउंस किया लेकिन उसको अभी तक जो है वो फाल नहीं किया गया। तो हमारी कुछ अपोजिशन से गनीजों की चीखें और आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको एड्रेस करने के लिए ये बावर करवाने के लिए कि जनूबी पंजाब जो है वो इस वक्त हुकूमत पंजाब की अवाम के साथ जुड़ी जो कमिटमेंट है उसकी अक्कास है और वज़ीर आज़म इमरान खान के हाथों बहावलपुर में जल्द हम एक और सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करवाने जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के साथ जुड़े जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनको नोटिफाई करने जा रहे हैं। तो उससे हमें जो
इंतजामिया की प्लेसमेंट और वहाँ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर को उन इलाकों तक पहुँचाने का जो कानूनी मरहला है उसको हम पाया तकमील तक पहुँचाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो रूल्स ऑफ बिजनेस के नोटिफिकेशन के साथ जुड़ा इस हुकूमत का आज़्म है कि हमने खानापुरी और आई वाश नहीं, हमने एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कंटिन्यूड कंसिस्टेंट रोड मैप जो है वो जनूबी पंजाब को इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए, वहाँ के नौजवानों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी देने के लिए और स्पेशली जो उनके बुनियादी हकूक हैं उनके लिए लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए जो तरजीहात इस हुकूमत की हैं उस पर तेजी से पेशरफ्त जारी है। मुझे ये जान के खुशी हुई है और आपको भी बता के खुशी है कि फोर्ट मनरो जो एक हमारा ऐसा टूरिज्म के साथ जुड़ा इलाका जो सिर्फ आपने किताबों में पढ़ा होगा लेकिन उसकी तरक्की के साथ जुड़ा कोई ऐसा मंसूबा आपने अपनी नज़रों से गुजरता हुआ नहीं देखा होगा। तो फर्स्ट टाइम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की क़यादत में पीटीआई की हुकूमत जो है वो फोर्ट मनरो में कैडेट कॉलेज जो है उसके लिए फुल फंडिंग करने जा रही है। इस कैडेट कॉलेज से जो वहाँ एहसास महरूमी है उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कोई सुलमान में सोडा डैम इसी साल शुरू करने जा रहे हैं और 4 मजीद डैम जो है इस इलाके में उनकी फिजिबिलिटी तैयार की जा चुकी है। जो वज़ीर आला पंजाब ने पूरे सूबे की तकदीर बदलने का अज़म किया हुआ है और जिस विजन और मिशन के तहत वो जनूबी पंजाब के दौरे पर निकले हुए हैं वो कल उन्होंने 8 घंटे उस खित्ते के अवाम के मसाइल के तदारक के लिए मंसूबों के इफ्तिताह पे खर्च किया। वो 8 घंटे का वक्त और दुरास्ता जो लोग आज उन प्रोटोकॉल पे तनकीद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी वहाँ 8 घंटे जो एक सड़क बाय रोड उन्होंने अपने उस पसमानदा इलाके के अंदर जिस तरह तरक्की के अमल की जो बुनियादें रखी और जो उससे पहले जारी मंसूबे थे उनको पाया तकमील तक पहुंचाया। इन मंसूबों में जो सबसे अहम 2 अरब 87 करोड़ 74 लाख के वो मंसूबे हैं जिनका डिविडेंड जो है वो आने वाले चंद महीनों में आपको नजर आएगा, जिसके तहत जो है वो सिटी पार्क सिंथेटिक ट्रफ जो उन बच्चों का हक था कि अच्छा खेल का मैदान मिले उसका भी कल उन्होंने इफ्तिताह किया और सिंथेटिक ट्रफ जो हॉकी ग्राउंड है उस पर 13 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत आई है। इसके अलावा जो है वो सिटी और जनाब फैमिली पार्क की तमीर और तरक्की के लिए भी 4 करोड़ 77 लाख रुपए जो हैं वो रखे गए हैं। जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है वहाँ पे बॉर्डर मिलिट्री पुलिस का आपने देखा कि पिछले दिनों कुछ गैंग और वहाँ डाकू राज की वजह से अवाम की जान को चैलेंजेस भी दरपेश रहे, तो उस बॉर्डर मिलिट्री पुलिस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए वहाँ पे उनकी चौकी और उनकी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ को भी उन प्रोजेक्ट के अंदर खसूसी अहमियत दी गई है। इसके अलावा जो इस वक्त तक वज़ीर आला पंजाब ने अरबों रुपए के वहाँ फंड मुख्तस करके उनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कल जिन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया है इस बात की काफ़ी करते हैं कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मुआविन खसूसी इत्तला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकावान लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कोशा है। पंजाब का तरक्याती बजट इस मरतबा 66% जायज रखा गया है। अब आपको ले चलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अमीनुल हक इस वक्त इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करें। बहुत सारी चीज़ों पर नेगलेक्ट होता चला आ रहा है। उसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश थी
प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि डिजिटल पाकिस्तान, और डिजिटल पाकिस्तान में उन इलाके के लोगों को भी बड़े शहरी इलाकों के साथ अमाहंग करना। इसके सिलसिले में आज अच्छी एमओयू साइन हुई है। और जब हम ये बात कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो विजन है डिजिटल पाकिस्तान, इसके लिए क्या जरूरी है? 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। कनेक्टिविटी नंबर 1, कि तमाम जगहों पर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नंबर 2, इजी एक्सेस टू द स्मार्ट डिवाइस। और नंबर 3, मोटिवेशन टू यूज डिजिटल एप्स। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। लेट अस स्टार्ट विद दी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के हवाले से मिनिस्ट्री ऑफ IT पूरे पाकिस्तान में बलाफसरिक रंग नस्ल और सियासी नजरिए से बालातर अफसर काम कर रही है। जहाँ पे वाला पाकिस्तान के तमाम इलाके, चाहे वो साउथ बलूचिस्तान हो, वहाँ पे एक बड़ा मेरा हाल है कि मिनिस्ट्री ऑफ IT ने अपना नेटवर्क बिचारी है। इसी तरीके से इंटीरियर से या फाटा है। मैं उन सूबों की बात नहीं कर रहा, आज मैं से बात करूँगा स्पेसिफिक जनूबी पंजाब का। जनूबी पंजाब शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करते हैं, उनकी ख्वाहिश है हमेशा, और जो कोशिशें काबिश उनकी नजर आ रही है जनूबी पंजाब से डिजिटल बनाने के हवाले से और वहाँ की चीज़ों को डेवलपमेंट को अपलिफ्ट करने के हवाले से, तो डेफिनेटली इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज हमने फैसला किया है कि इन इलाकों में काम किया जाए। क्या रखा गया है कि जनूबी पंजाब में मोबाइल सर्विसेज को बेहतर किया जाए, ब्रॉडबैंड सर्विसेज को बेहतर किया जाए और फाइबर ऑप्टिक केबल को बिछाया जाए। इसी सिलसिले में लगभग 38 प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया गया इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द साउथ पंजाब। और इसकी जो कॉस्टिंग है, मैं समझता हूँ ये साउथ पंजाब की जो मुख्तलिफ इलाके की जो कॉस्टिंग आएगी, ये लगभग 6.47 यानी कि 6.5 अरब रुपए की लागत से यहाँ पे काम किया जा रहा है। इससे फायदा क्या पहुंचेगा? इसके अंदर हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट को शामिल किए साउथ पंजाब के वो तमाम डिस्ट्रिक्ट जिसके अंदर शामिल होंगे, उसमें बाबलपुर डिवीजन शामिल होगा, डेरा गाजी खान शामिल होगा और मुल्तान डिवीजन भी शामिल होगा। डेरा गाजी खान मैं समझता हूँ कि ये तमाम एरियाज जो हैं बहुत ही अनसर्व एरियाज है, लेकिन हमारा टारगेट क्या रखा है कि मुल्तान और खानवा आज अलहमदिल्ला ये साइनिंग होने जा रही है। मुल्तान के अवाम को भी 3G और 4G की फैसिलिटीज होगी और साथ साथ ब्रॉडबैंड सर्विसेज की भी। और एक जो खूबसूरत बात है जो हमेशा रखी जाती है वो टाइमलाइन का, कि टाइमलाइन कब मुकम्मल करना है। तो मेरा ख्याल है 12 से 18 महीने का टारगेट है, इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के विजन के हवाले से देखा जाए तो मिनिस्टर ऑफ IT क्या करेगी। अभी मैं बैठा हुआ था तो आमिर बहन ने बड़ी अच्छी बात की, मुझसे कहा कि अमीन भाई जो उनके अल्फाज थे कि चवन्नी देकर 6 रुपए का टैक्स लगा दिया। मैं हंसा, मैंने कहा नहीं इसका उलट है। मैंने कहा इसका उलट है कि 6 रुपए का फायदा दिया और फिर चवन्नी का टैक्स लगाया। बिल्कुल मेरा ख्याल है जो IT इंडस्ट्री से लोग हैं, मुझे याद है शाह साहब मौजूद थे, गालिबन 11 जून बजट पेश किया जा रहा था। 11 जून से पहले काबीना की मीटिंग थी। काबीना की मीटिंग में जैसे वो फ्लाइट चली कि डाटा के ऊपर कैसे जो ड्यूटी लगाई जा रही है या मोबाइल बातचीत 3 मिनट के बाद कैसे ड्यूटी लगाई जा रही है, तो हमने भी एतराज़ किया, मिनिस्टर ऑफ IT ने भी, शाह साहब ने खुल के साथ दिया, सानिया नशरत की और मेरा ख्याल अहमद था। इन्होंने कहा ऐसे नहीं होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने ब्रॉड विजन का मजा रखा और उसे खत्म कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गालिबन 25 जून को सेनेट में बात करते हुए फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हर 5 मिनट के बाद 75 पैसे टैक्स लगाने का ऐलान किया। इन प्रिंसिपल आई डिसएग्री, आई हैड द करेज टू से दैट। इन प्रिंसिपल आई डिसएग्री। मेरा ख्याल है फौरी बात हमने प्राइम मिनिस्टर से, मैंने और अपनी पार्टी है खालिद अब्दुल सिद्दीकी के साथ जाकर प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल कहा कि ये बात अच्छी है, हम इसे डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एश्योर कराता हूँ पूरी इंडस्ट्री को कि यस हमारा अपना स्ट्रेंथ आपके जहन के साथ मिला हुआ है। इंशाअल्लाह ताला हम इससे बात करेंगे और इसे कोशिश करेंगे कि इसको खत्म किया जाए। यस हम आपके साथ पेज पर एक ही पेज पे मौजूद हैं। शाह साहब छोटी सी मतलब हम बात करें, पुरानी बात नहीं करता, मैं 2018 से गुफ्तगू करता हूँ कि 2018 में क्या सूरत हाल थी और जब 2021 में तो हमारी क्या सूरत हाल है। आमतौर पर मिनिस्ट्री ऑफ IT को बहुत ईजी लिया जाता है, खासकर जो हमारी कैबिनेट और मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से। मैं 2-3 सीधे फिगर आपको कोट करता हूँ। 2018 जब हमारी हुकूमत है, खास हुकूमत संभाला, तो मोबाइल फोन के यूजर थे 16 करोड़। अलहमदुलिल्लाह
यानी जब 30 जून को मुकम्मल कर रहे हैं तो अब मोबाइल फोन के यूजर 18 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुका है। ये 2 करोड़ 10 लाख का इलाका है। इसी तरह ब्रॉडबैंड भी 2018 जून जब हुकूमत संभाले तो 7 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल करते थे। आज 30 जून के बाद अल्हम्दुलिल्लाह 10 करोड़ लोग ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 करोड़ का इजाफा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ IT अपना काम जारी व सारी रखी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी बात है। इसके अलावा वो तमाम जो चीजें थी, अगर हम पिछले कई डेकेड से देखते हैं पेंडिंग में चली आ रही थी, और जब मैंने वजारत संभाली तो आमिर की तमाम टीम, टेलीकॉम की तमाम टीम हमेशा मेरे पास आकर के मुख्तलिफ हवाले से पोलाइट तरीके से बट फॉर्मली अपना प्रोटेस्ट लॉन्च कराते थे, जिसमें मेरा ख्याल है कि राइट ऑफ वे का ना होना। ये राइट ऑफ वे 1998 के बाद कुछ नहीं बना था। मिनिस्टर ऑफ IT ने इस पर काम किया। राइट ऑफ वे को न सिर्फ ये कि कैबिनेट से पास करा, उसके इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया। ये एक बड़ा कारनामा था मिनिस्ट्री ऑफ IT का, और ये बड़ा मुश्किल काम है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, कंटेनमेंट पर सब इन्वॉल्व थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल हो गया। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट काम, टेलीकॉम को इसमें इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। ये बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा इसका। टैक्सेस के हवाले से हमेशा शुरू दिन से मेरी राय होती थी FBR के साथ भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ भी, कि विथ होल्डिंग टैक्स 12.5% को कम किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस बिल का हिस्सा बन चुका, 12.5% से कम होकर 10%, और अगले साल गालिबन 9 या 8% पर चला जाएगा। तो ये भी एक बड़ा कारनामा है। और FAD भी साथ है, जन चूंकि आप ये तमाम चीज देखते भी हैं, और तो ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी 17% से कम करके 16% कर दिया गया। और चूंकि जैन मौजूद है तो मैं इसकी मौजूदगी में मेरा ख्याल आप सबों के सामने से कमिटमेंट ले लेते हैं कि ये जो 5 रुपए पे 5 मिनट के जो 75 पैसे टैक्स लगाया गया है, हम तो लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ध्यान भी हमारे साथ होगा। चले जी, जेंटलमैन कमिटमेंट हम देते हैं, इट्स अ वंडरफुल थिंग। क्योंकि मैं सियासी वर्कर हूँ तो सियासी तरीके से चलूंगा शाखा, ठीक है ना। तो जैन ने मुझे कमिटमेंट दे दी इन फ्रंट ऑफ द होल पीपल, इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, हम साथ चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। छोटी छोटी चीजें मैं बता दूं ताकि फिर आप जनूबी पंजाब को आप लीड करते हैं, आप एक बड़े लीडर भी हैं। मैं उम्मीद रखूंगा कि जब जनूबी पंजाब के लिए आपकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कोशिशें जारी हैं, प्रैक्टिकल काम होता हुआ नजर भी आ रहा है, तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आप जनूबी सिंध के लिए भी कुछ न कुछ जरूर करें। हमारी नजरें आपकी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से कराची और हैदराबाद के हम आपको देखते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल करीब में आप इसके लिए अपनी सियासी कोशिशें जरूर करेंगे। एडिशनल स्पेक्ट्रम, मेरा ख्याल है कि 2017 के बाद स्पेक्ट्रम नीलाम नहीं हुआ था, और जिसे कहते हैं कि खामखा दबा के रखा हुआ था। हमने जो मुख्तदर हरकतों से बात की, उनको कन्विंस किया कि आप इसे लेकर आए, ऑप्शन करें। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मैं समझता हूँ कि अगले महीने सेक्रेटरी साहब हमारे अगले महीने इंशाअल्लाह ताला एडिशनल स्पेक्ट्रम ऑप्शन पे चला जाएगा, तो अरबों रुपए पाकिस्तान के खजाने में। इसके साथ साथ 2 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए हैं। मेरा हाल सबको पता है कि कैबिनेट को ऑटोमेशन ये मिनिस्ट्री ऑफ IT ने किया है, हमारी तंजीम में NIT भी इसके जरिए हुआ है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी वाली फाइल लेके नहीं जाते बल्कि टैबलेट लेके जाते हैं, और बड़े आसानी से हमारा काम हो रहा है। दूसरा टारगेट हमने क्या रखा हुआ, साइबर एफिशिएंट पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को भी पेपरलेस करना। इसके ऊपर मुसलसल हमारी मीटिंग है, हर महीने पे बात हो रही है। नेस्पाक का कंसल्टेंट भी हायर किया हुआ है, उनकी रिपोर्ट तकरीब आ चुकी है हमारे पास इंशाअल्लाह ताला। गालिबन 2023 जनवरी में भी आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पार्लियामेंट भी पेपरलेस हो जाएगा। तमाम टेबल कुर्सी के सामने जो टैबलेट मौजूद होगा, अब मोटी वाली फाइल नहीं चलेगी इंशाअल्लाह ताला। वी आर वर्किंग ऑन इट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आखिरी बात करूंगा, पेशावर कुरैशी साहब, इनकी जबरदस्त तकलीफ होती है जब भी उर्दू में गुफ्तगू करते हैं, ऐसा लगता है कि फूल जा रहा है। तो मैं वफाकी वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक का तकरीब से खिताब आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनका कहना था कि जनूबी पंजाब में मोबाइल सर्विस की तेजी के लिए कोशिश हैं। सर्विस की तेजी के लिए 6.5 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे शेयर सुर्खियां।